हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम n to n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਕਿਊਬ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ 1 ਜਦੋਂ ਔਨ ਟੂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਟ x1 x2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ f(x1) ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f(x2), ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਮੇਜਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ x1 ਅਤੇ x2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ f(x1) ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਕਿਊਬ। ਜੇ 1 ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ x2 ਕਿਊਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x2 ਕਿਊਬ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। x1 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x2 ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ x1 ਮਾਈਨਸ x2, a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ x1 ਮਾਈਨਸ x2 ਇੰਟੂ x1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ x1 x2 ਪਲੱਸ x2 ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x1 ਮਾਈਨਸ x2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਔਰ x1 ਪਲੱਸ x1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ x1 x2 ਪਲੱਸ x2 ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2, ਅਤੇ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 1। function is equal to 1 1, therefore function is 1 1। ਹੁਣ for range on to ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ range ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ for on to। ਹੁਣ on to ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੁੱਟ fx is equal to y। fx ਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ fx ਕੀ ਹੈ x ਕਿਊਬ, x ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਹੁਣ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ y ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 8 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ 8 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਟੂ ਵਾਸਤੇ। therefore f is not on to। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ 1 2 3, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ x1 ਕਿਊਬ, x1 ਕਿਊਬ ਮਤਲਬ x ਕਿਊਬ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਕਿਊਬ 2 ਕਿਊਬ 3 ਕਿਊਬ 4 ਕਿਊਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਅਤੇ x ਕਿਊਬ ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ x ਕਿਊਬ 'ਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 8 27 64 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 2 ਹੈ, 2 ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ।
हाँ जी, नैक्सट देखो अगला है इस तरह ही एफ फ्रॉम एन टू एन, पहले एन टू एन किता, हुण है जेड टू जेड, जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज गिवन बाय एक्स क्यूब। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ फंक्शन है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ देखना ਵਾ इंटीजर्स ਦੇ ਵਿੱਚ जेड टू जेड। ठीक है, इंटीजर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਰੀਅਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟ x1 x2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ z ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ z ਸੱਚ ਦੈਟ fx1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx2। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 क्यूब इज़ इक्वल टू x2 क्यूब, फिर उस तरह x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन जाएंगे x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੈਜਨਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ x1 ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ f ਇਜ਼ 1 1। ਫਿਰ ਸੇਮ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, रूट क्यूब रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर ऑन टू इतने भी उसी तरह पुट एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू आ गई वाई रेज टू पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। इंटीजर्स ये नहीं बनेगा, देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू, ए ऑन टू नहीं है। ठीक है, हुण यही जरा थर्ड क्वेश्चन है, एक और है, यह सैकेंड सीगा तुहाडा पार्ट एक्स क्यूब वाला। हुण थर्ड पार्ट देखो, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। हुण आपां लै रहे रियल टू रियल फंक्शन, फिर वही है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर हम उसी तरह स्टार्ट करांगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द आर सच दैट fx1 इज़ इक्वल टू fx2। इट इम्प्लाइज x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब मतलब इज़ इक्वल टू x2 क्यूब आ जाएगा। फिर इन्हों उस तरह के फैक्टर बन जाएंगे, इज़ इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि ये इमेजनरी रूट बनने हैं, इन्हों सानू फिर स्किप करना पएगा। हाँ जी, तो इत्थे फिर आ जाएगा इट इम्प्लाइज x1 इज़ इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज़ 1 1, f इज़ 1 1 आंसर आ गया। हुण है बेटा फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू वास्ते असीं फिर वही करांगे, पुट एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई, एक्स इज़ इक्वल टू वाई रेस टू पावर 1/3। क्यूब रूट जड़ा वै वो रियल नंबर नूं बिलोंग कर जाएगा। इत्थे की आ जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज़ ऑन टू इन केस ऑफ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 1 ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 1 ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ एग्जांपल देखो, दो केसेस हैं, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4x। असी चेक करना है कि फंक्शन whether फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू। ठीक है, ऐसे चेक करना, चेक करो कि फंक्शन जड़ा वह 1 1 है या
ऑन टू है। फंक्शन तुहानूं गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तरीका ਉਹੀ है करन दा। फंक्शन जिहड़ा वै फंक्शन रियल टू रियल है, असीं लिखांगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। सेम सारे क्वेश्चन इक्को तरीके नाल करने हैं। हुण f(x1) यानी कि इत्थे x की जगह ते असीं x1 पुट करता, तो इत्थे भी x की जगह ते असीं x1 पुट कर देंगे। वो बन जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। हुण दोनों दे विच 3 है तो 3 नाल 3 कैंसल हो गया। साढ़े को आ गया माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस माइनस कैंसल हो गया, 4 4 कैंसल हो गया। इतों आ गया x1 इज इक्वल टू x2। इतों आ जाएगा देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। फंक्शन जिहड़ा वै ਉਹ 1 1 है। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫॉर ऑन टू वास्ते प्रूव करांगे। फॉर ऑन टू वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, पुट कर देना पुट f(x) इज इक्वल टू y। ਹੁਣ f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 3 ਮਾਈਨਸ 4x इज इक्वल टू y। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ x ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਈਨਸ 4x इज इक्वल टू y माइनस 3। ਹੁਣ माइनस उधर जाएगा तो वह बन जाएगा माइनस वाई माइनस 3, यानी कि 4x की वैल्यू आ गई माइनस वाई प्लस 3। ठीक है, हुण x की वैल्यू की आ जाएगी 3 पॉजिटिव अगे ले आओ, 3 माइनस वाई ओवर 4। 3 माइनस वाई ओवर 4। इत्थे असीं की लिखना वा देयरफॉर कॉरस्पोंडिंग टू ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ वैल्यू जी आई है ये बिलोंग कर रही है रियल नंबर ਨੂੰ, क्योंकि रियल नंबर 'ਚ कोई ना कोई वैल्यू बटे वाली होएगी, नैगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए। कॉरस्पोंडिंग टू एवरी वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर, मतलब कि वाई जी है वो रियल नंबर असीं पुट कर ली तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एवरी वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर देयर एग्जिस्ट सम एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई ओवर 4। ठीक है, सच दैट फिर नैक्सट स्टैप की करना ਉਹਨੂੰ ध्यान नाल समझो। नैक्सट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बेटा यही वैल्यू जी है f(x) च पुट कर देंगे तो फिर चैक करांगे कि वो की आंसर देगा। ठीक है, जिस तरह कि हुण है सच दैट की करांगे असी, सानू पता है कि f(x) जी है वो किहदे बराबर है वाई के बराबर। ठीक है, तो इत्थे ये आ जाएगा f(x) एक्स की जगह तो असी वैल्यू ए पुट कर देनी f(x) इज इक्वल टू वाई जोड़ा सी, यानी एफ ऑफ हुण चैक करांगे कि f(x) इज इक्वल टू वाई आंदा है कि नहीं आंदा है वैल्यू पुट करके। एस एक्स की जगह तो असी वैल्यू लगा देनी 3 माइनस वाई ओवर 4। ठीक है, उन्होंने सॉल्व करके देखांगे कि ये वाई के बराबर आंदा है। दिस इज इक्वल टू हुण जी वैल्यू जो बेटा सानूं जी दित्ती सी f(x), हुण इत्थे साइड ते लिख लो, साइड ते लिख लो कि f(x) की जी वैल्यू है वो किहदे बराबर दित्ती हुई है, वो बराबर है 3 माइनस 4x। ਇਹਦਾ मतलब x जिथे x लिखा हुआ है, क्योंकि हुण असीं x की जगह तो यह चीज़ यूज़ कर रहे हैं 3 माइनस वाई ओवर 4। ਇਹਦਾ मतलब जिथे x लिखा उत्थे 3 माइनस वाई ओवर 4 असीं लगा देंगे। ये बन जाएगा 3 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू लगाओ 3 माइनस वाई ओवर 4। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4 ਨਾਲ 4। 3 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। एक एक स्टैप करके चलोगे तो सारा क्लियर चंगी तरह समझ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 ना 3 कैंसल हो गए तो हम तुहाडे को देखो आंसर तुहाडा बन गया कि एफ ऑफ 3 माइनस वाई ओवर 4 जी यदी वैल्यू जी है वो किहदे बराबर आ गई, वाई के बराबर आ गई। ठीक है, अगर वाई के बराबर आ गई देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू आ गया। दिस इज़ ए बाइजेक्शन। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट है दा एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर। पहले तो बेटा फिर उस तरह लिखांगे
f is a function from real to real, fx given a 1 plus x square. Let x1 x2 belongs to the real number, ठीक है, such that fx1 is equal to fx2. fx1 ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ x1, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square. 1 ਨਾਲ 1 कैंसिल हो गया, x1 square is equal to x2 square. ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ x1 minus x2, x1 square minus x2 square is equal to 0, ठीक है, ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। x1 square ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ x1 square is equal to ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ x, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ x1 minus x2 into x1 plus x2 is equal to 0। यानी कि इत्थे हुण फिर उस तरह बेटा जिस तरह पिछले असीं कीता सी क्वेश्चन सेम बन गया कि x1 minus x2 is equal to 0 और x1 plus x2 is equal to 0। It implies x1 is equal to x2 और x1 is equal to minus x2, यानी कि दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि अगर दो वैल्यूज़ आ गई तो फंक्शन जड़ा वै, क्योंकि x1 दियाँ दो वैल्यूज़ आ गई, दो इमेजेस आ गई, तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये फंक्शन जड़ा 1 1 नहीं है, ठीक है। अगर 1 1 नहीं है, हुण रेंज वास्ते की करना है, फॉर रेंज पुट fx इज़ इक्वल टू y, यानी कि fx है तुहाडे को 1 plus x square इज़ इक्वल टू y। हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ को वैल्यू ਹੁਣ x की वैल्यू कड्डांगे, x स्केयर इज़ इक्वल टू आ जाएगा y minus 1। ਹੁਣ x स्केयर जड़ा y minus 1 आ गया, ਹੁਣ जड़ा x स्केयर है यह तो हमेशा की होना पॉजिटिव होना, पर y जड़ा वै बिलोंग कर लिया वै रियल नंबर नूं। अगर असीं इत्थे 2 ले लैने y की जगह ते तो बन जाना -2, जबकि x स्केयर का आंसर आ ही नहीं सकता। x स्केयर जड़ा हमेशा की होएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होएगा। 0 की वैल्यू भी आ सकती ना, अगर y नूं 1 पुट कर देंगे तो y 1 minus 1 हो जाएगा 0। इसका मतलब x के दियाँ वैल्यूज़ आ गई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। इसका मतलब कि जी y की वैल्यू सिर्फ की आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x जड़ा असी हुण असी की लैना वा पॉजिटिव लैना, तो अगर पॉजिटिव लैना तो इसका मतलब कि इहदियां सारियां वैल्यूज़ जड़ियां इहदियां सारियां प्री इमेजिस जड़ियां वो नहीं मिलणगियां, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि इसकी वैल्यू जड़ी हमेशा की रहेगी, क्योंकि एक्स स्केयर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया एक्स स्केयर प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन, दोनों पासे अगर असी 1 ऐड कर दिए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो एक्स स्केयर प्लस 1 की वैल्यू है वाई की। इसका मतलब वाई की वैल्यू जड़ी हमेशा की होनी चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होनी चाहिए है। इसका मतलब बाकी वैल्यूज़ जड़ियाँ वै नैगेटिव 0 होर वैल्यूज़ जड़ियाँ वो सारियां बच जानियां, उन्होंने कोई प्री इमेज जी तुहानूं नहीं मिलेगी। इसका मतलब फंक्शन जड़ा वै वो ना ही तो 1 1 है, देयरफॉर फंक्शन इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही वो की है ऑन टू है, ठीक है। इस तरह के जोड़े क्वेश्चन है वो चंगी तरह बेटा आप कर लेने। हुण नैक्सट टॉपिक असी जोड़ा करना मैं, नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट है लेट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 है बेटा। लेट ए दिता है तुहानूं r-3 एंड b इज़ इक्वल टू r-1 फॉर रियल नंबर।
consider the function f from a to b a to r function ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ a to r ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ a to r defined by fx is equal to x minus 2 over x minus 3 is f is 1 1 and onto is f 1 1 and onto justify your answer। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫॉर 1 1 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਫਰੋਮ a to b ਹੈ ਬੇਟੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ a to b ਹੋਈ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ a to b defined by fx is equal to x minus 2 over x minus 3 ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ let x1 x2 belongs to the real number ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ a to b ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ a ਸੈਟ ਚੋਂ belongs to a x1 x2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ a ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਦੈਟ fx1 is equal to fx2 ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ fx1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ fx2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ fx1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ x1 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 minus 2 over x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 over x2 minus 3 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x2 minus 2 into x1 minus 3 मल्टीप्लाई करांगे बन जाएगा x1 x2 minus 3 x1 minus 2 x2 plus 6 हाँ जी ये बन जाएगा x2 x1 इको गल है x1 x2 minus 3 x2 minus 2 x1 plus 6 हाँ जी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ x1 x2 ਨਾਲ x1 x2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -3x1 ਤੇ 2x1 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 3x2 ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰਕਮ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -2x2 plus 3x2 is equal to 3x1 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3x1 minus 2x1 ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x2 is equal to x1 ਯਾਨੀ ਕਿ x1 is equal to x2 ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ fx1 ਤੋਂ ਕਿ fx1 is equal to fx2 ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ x1 is equal to x2 therefore f is 1 1 ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ for on to ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ put fx is equal to y fx ਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਨੀ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ x minus 2 over x minus 3 is equal to y ਹੁਣ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x minus 2 is equal to y into x minus 3 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ x minus 2 is equal to xy minus 3y ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ x minus xy is equal to 2 minus 3y ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ 1 minus y is equal to 2 minus 3y x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਈ 2 minus 3y over 1 minus y where y is not equal to
1। हुण जिहड़ा x है वो किनू बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर माइनस की आ जाएगा x की वैल्यू जिहड़ी है वो r-3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह जी वैल्यूज़ निकली आपां ये हुण नीचे y जिहड़ा 1 नहीं होना चाहिए। अगर y 1 बन गया तो इन्हें इनफिनिटी बन जाना। तो यह जी वैल्यूज़ है हुण इत्थे लिखांगे देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द रियल नंबर देयर एग्जिस्ट सम x इज इक्वल टू 2 - 3y ओवर 1 - y सच दैट। हम असीं पुट करके देखांगे कि यह वैल्यू अगर असीं पुट करिए कि y च आंसर आंदा एफ ऑफ एक्स यानी कि x की जगह ते असीं यह पुट करना 2 - 3y ओवर 1 - y। हुण सानूं पता सी ना कि उन्हें दिता की होया वै, सानूं दिता होया वै कि f(x) जिहड़ा वै ਉਹਦੀ वैल्यू दिती हुई है सानूं f(x) इज इक्वल टू गिवन है सानूं 2 x - 2 ओवर x - 3। यह साढ़े को f(x) जिहड़ा सानूं गिवन सीगा x - 2 ओवर x - 3। तो असीं इहदे विच f(x) दे विच x की जगह ते हुण असीं इत्थे x सीगा ते इत्थे x सी, इत्थे हुण x की जगह ते असीं पूरी वैल्यूज़ पुट करांगे। नीचे पुट कर लैंदे दिस इज इक्वल टू x की जगह ते लग गया 2 - 3y ओवर 1 - y - 2 ओवर फिर x की जगह ते लग गया 2 - 3y ओवर 1 - y - 3। हाँ जी बच्चा, जोड़ा इक्वल टू का साइन है जोड़ा सेंटर वाली लाइन होंगी है सामने रखा करो, फिर क्लीयर हो जाता कि उपर वाला यानी कि बटा केड़ा ते नीचे वाला बटा केड़ा वै, फिर कन्फ्यूजन नहीं होंगी। ठीक है, हुण नैक्सट देखो एलसीएम ले लांगे। दिस इज इक्वल टू ऊपर एलसीएम आ गया तुहाडे को ते नीचे लाइन लगा लो। ऊपर एलसीएम आ गया 1 - y 1 - y यानी कि 2 - 3y - 2 इंटू 1 - y। नीचे भी एलसीएम आ गया 1 - y 2 - 3y - 3 इंटू 1 - y। नीचे वाला बटा जड़ा दोनों का सेम है, ये कैंसल हो गया। हुण इन्हां नूं कर लो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 - 3y - 2 प्लस y ओवर 2 - 3y - 3 प्लस y। 2 दे नाल 2 कैंसल हो गए। हाँ जी, इत्थे आना सी प्लस 3y तो -3y ना प्लस 3y कैंसल हो गया, साढ़े को बच गया -3y प्लस y यानी कि -2y। नीचे आ गया 2 - 3 -1 1 माइनस कैंसल हो गए। हाँ जी, हाँ इत्थे भी असीं मल्टीप्लाई करना ही 2y 3 माइनस ये आ गया y, ऊपर भी y आ गया नीचे भी 1 आ गया तो आंसर बन गया साढ़े को y। यानी कि देयरफॉर f ऑफ 2 - 3y ओवर 1 - y का आंसर कितना आ गया y आ गया। अगर यह y आ गया देयरफॉर f इज़ ऑन टू, फिर असीं की कहांगे कि फंक्शन जिहड़ा साडा की है वो ऑन टू है। 1 1 भी आ गया तो ऑन टू भी आ गया, तो यह तुहाडा हो गया क्लीयर। हाँ जी, ये नाल ही बेटा एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक क्वेश्चन होर है, असी प्रूव करना वै फंक्शन है फ्रॉम नैचुरल नंबर यानी कि नीचे यानी कि यूनियन नहीं जीरो नहीं आना चाहिए। नैचुरल नंबर सारे नैचुरल नंबर वैसे पर इन्हें यूनियन देती ना कि यानी कि जो नैचुरल नंबर है वो यूनियन जीरो भी नाल है। अप्रोचेस टू n यूनियन जीरो बी डिफाइंड बाय fn is equal to n plus 1 if n is even, n minus 1 if n is odd। हाँ जी, शो दैट फंक्शन इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हुण प्रूव करना असी कि यह फंक्शन जड़ा वै वो की हैगा वै 1 to 1
1 to 1 है। हुण इत्थे बेटा अलग अलग केस असीं डिस्कस करने पैणगे सानूं। लैट FN इज इक्वल टू FM, यानी असीं अपने कोलों ले लिया कि जिस तरह असीं लईदा सी FX इज इक्वल टू FX1 इज इक्वल टू FX2 लईदा सी ना, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਟ FN इज इक्वल टू FM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਬੋਥ NM ਆਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੈਨ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਹੋਣਗੇ NM, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਦੈਨ N+1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ N ਈਵਨ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, M ਵੀ ਈਵਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਉਣੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ N+1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M+1 1 1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M, ਦੇਅਰਫੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਇਫ ਬੋਥ NM ਆਰ ਔਡ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਜੇ ਔਡ ਹੈ ਤੇ ਔਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ N-1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ N-1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M-1, -1 ਨਾਲ -1 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ N ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 1 1 ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਇਫ N ਇਜ਼ ਈਵਨ ਐਂਡ M ਇਜ਼ ऑड, M इज़ ऑड, तो फिर की आ जाएगा, अगर N ईवन है तो M ऑड है। इफ N इज़ ईवन तो फिर असी जड़ा वै वो बन जाएगा N+1 जड़ा वै वो की बन जाएगा, दिस इज़ ऑड बन जाएगा। एंड M ऑड है तो ऑड दे विचों एक घटावांगे तो वो की बन जाएगा, दिस बिकम्स ईवन, तो वो की बन जाएगा ईवन। ठीक है, यानी ईवन पुट करांगे तो ऑड बन जाएगा, ऑड पुट करांगे तो वो ईवन बन जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब हो गया इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ FN ਜਿਹੜਾ ਵਾ इज़ नॉट इक्वल टू FM, ਇਹ ਬਰਾਬਰ नहीं होणगे। देयरफॉर क्योंकि जे फंक्शन ही बराबर नहीं होणगे तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ कदों बराबर होणगे, इफ अगर FN इज़ इक्वल टू FM आएगा, एक किस केस च आएगा, अगर दोनों ऑड होणगे या दोनों ईवन होणगे, तो फिर उस केस दे विच N इज़ इक्वल टू M होएगा, तो फंक्शन जड़ा 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो नैक्सट है बेटा ऑन टू वास्ते। ऑन टू वास्ते भी सेम केस है, क्योंकि जे असी ईवन लैना, इफ N इज़ ईवन तो आंसर ਉਹਦਾ ऑड आएगा N+1, तो वो कोई ना कोई नंबर जड़ा सानू लभ ही जाना है, क्योंकि नैचुरल नंबर असी सारे लैने हैं, तो नैचुरल नंबर च 0 भी आ सकती, तो असी पॉजिटिव भी लवांगे सारे नंबर, नैगेटिव तो असी कोई पुट ही नहीं करना, या ईवन या ऑड, क्योंकि जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ 1 - 1 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 0 ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ n ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਈਵਨ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, 2 + 1 ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। अगर असी 4 लवांगे 4 + 1 5 आ जाएगा। यही होएगा ना कि अगर असी ईवन नंबर पुट करांगे तो आंसर जड़ा ऑड च आ जाएगा, तो अगर असी ऑड पुट करांगे तो आंसर जड़ा वै वो ईवन च आ जाएगा। ठीक है, अगर असी ऑड पुट किया 1 1 - 1 की आए ना 0 0 भी असी उन्होंने कह रहे हैं कि बिलोंग कर रहा उस सैट के। ठीक है, तो इस करके जे असी लैने 3 3 - 1 2, तो इधर नंबर जड़े ईवन आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि दोनों केसिस दे विच एक ही बन जाएगा, 1 1 भी होएगा तो ऑन टू भी होएगा। देयरफॉर फंक्शन इज़ ऑन टू, फंक्शन इज़ ऑन टू, 1 1 भी बन गया तो ऑन टू भी बन गया।